Now we are moving to another topic, that is 9.3, a journey through different habitat. तो हमने two types of different habitats हमने सीखा था. One is terrestrial habitat and another one is aquatic habitat. तो terrestrial habitat मतलब क्या होता है? जो land related habitat को हम terrestrial habitat बोलते हैं. हमने बोला था what all comes under the category of terrestrial habitat? Desert, grassland, mountains. So these are all comes under the category of terrestrial habitat. So we are going to learn a few terrestrial habitat in details in this chapter. So first one, we are going to study about the desert. In the previous video, we have learned about one of the animal that live in the desert, that is camel. We discussed the abiotic factors of the desert and the adaptation in camel. हमने previous session में हमने camel के adaptation methods and the abiotic factors that affecting the camel. So all these things we have learned. But do you think only camel is the living organisms that live in a desert? No, you know that there are lots of creatures and lots of plants and animals there in the desert. So let's see a few here. What about other animals and plants that found in desert? तो पूछ रहे हैं कि बाकी animals और plants का adaptation methods कैसे होंगे? Okay, so there are desert animals like rats and snakes. वहाँ पे desert में there is a desert animals like rats and snakes which do not have long legs that the camel have. ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम लोगों ने बोला था कैमल को लॉन्ग लेग्स होता है so that it protects its body from the heat. We know that the camel is having a long legs to stay away its body from the intense heat during the day. है ना, हमने वो पढ़ा था. हमने उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था. ओके, लेकिन ये स्नेक और एक रैट को क्या ऐसे लंबे लंबे लेग्स हैं? Is they have the long legs like the camel have? No. तो फिर हाउ दे सर्वाइव फ्रॉम दिस इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे टाइम? तो ऐसे है तो ये जो रैट्स एंड द स्नेक ये जो इतना गर्म इंटेंस हीट से कैसे सुबह के टाइम बचते हैं? लेकिन कैसे बचते हैं? दे स्टे इन ब्यूरोज डीप इन द सैंड. ये जो फिगर पे आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिखाया है, जो ब्यूरोज जो होता है वहाँ पे द डीप इन द सैंड, सैंड के नीचे, सैंड के अंदर एक होल जैसे इन लोग बनाया है. देखो, लुक एट हियर एंड सी रैट इज हियर, द स्नेक इज हियर. तो इन लोग क्या होता है यहाँ पे रहते हैं ऑन द डे टाइम. और हमको पता है डेजर्ट में नाइट टाइम इज़ वेरी कूलर. रात के टाइम तो बहुत ठंड रहता है. तो उन लोग क्या करते हैं? रात के टाइम पे इन लोग ब्यूरो से बाहर आ जाता है. ओके, सो दिस इज द वे हाउ दिस desert snakes and rats survive in the desert during the daytime and they come out during the night time. So is that clear from this figure? Okay. And also in figure 9.5, see in 9.5 what it is showing? It shows some typical plants that grow in the desert. ये आप लोगों को पता है, cactus plant के बारे में आप लोगों को पता है. If we are asking, if someone asking to you what type of plant that is available in desert करके दिमाग में एक तो camel आता है, दूसरा हमें cactus plant के बारे में याद आता है ना. So let's see how this cactus plant सर्वाइव इन दिस डेजर्ट, हाउ इट ग्रोज इन दिस डेजर्ट. प्लांट कैसे, ये जो कैक्टस प्लांट नहीं तो यहाँ का डेजर्ट का प्लांट कैसे ग्रो करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी नंबर 3. एक्टिविटी नंबर 3 में ये बोलता है ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम. टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स एज वी हैव डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7. जब हम गेटिंग नो अबाउट प्लांट्स के बारे में जब हमने पिछले क्लास में 7th चैप्टर में हमने पढ़े थे, तब हम लोग ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, है ना. व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन इन प्लांट? Transpiration in plant means we know that there is a water is eventually get evaporated to the atmosphere from the leaves.
So that's why we are pouring water continuously to them, isn't it? So वो जो transpiration वो हम कैसे एग्जामिन किया था. इफ वी टाई अ पॉलिथीन बैग, तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर द नेक्स्ट डे यू कैन सी दैट द वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर इन द पॉलिथीन बैग. उस प्लास्टिक बैग से वो पॉलिथीन बैग में क्या होगा, एक वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आता है. उसका मतलब ये होता है देयर इज इवेंचुअली अ वाटर इवॉपरेट्स और वेपर्स आर गोइंग टू द एटमोस्फियर एंड इट डिपेक्ट्स दैट. तो यहाँ पे बोला गया है, नॉर्मल लीफ में तो ऐसे होता है. सो हियर दे आर आस्किंग टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी, वन फॉर कैक्टस प्लांट एंड अनदर वन फॉर अवर लीफी प्लांट. So in the leafy plant you have observed that there is a transpiration takes place. वो तो हमने activity 7th chapter में हमने देखा है. Then now here we are going to discuss what happened to that cactus. उस cactus को क्या होता है. Okay. So here the cactus plant is adapted to the arid climate. Arid climate means इतना intense, जो जहाँ पे dry land बोलते हैं ना, जहाँ पे rain नहीं होता है, वैसे जैसे desert जैसे वाले climate पे, ऐसे climate में रहने के लिए cactus तो adapt किया है. So the desert plants lose very little water through transpiration. So उन लोगों का क्या होता है, it transpires very low amount of water. The leaf of cactus is modified into the spines and photosynthesis done by the green stem. आप लोगों ने इस डायग्राम में आप लोग ये देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने कभी भी कैक्टस प्लांट आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग ने नोटिस किया होगा कि हियर what you can see here if we are talking about this cactus plant, what you can see here, it is a green. You think that this is a leaf. आप लोग सोचते हैं कि ये लीफ सोचते हैं, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसे हम स्टेम बोलते हैं. इट इज़ द स्टेम, इट इज़ नॉट द लीफ. और ये ग्रीन दिख रहा है ना, दिस इज द स्टेम ऑफ दिस प्लांट. एंड हमें ये भी पता है जहाँ पे ग्रीन पिगमेंटेशन होता है तो फोटोसिंथेसिस कैरी करता है. फोटोसिंथेसिस मीन्स द वे हाउ द फूड प्लांट प्रिपेयर द फूड. सो यहाँ पे स्टेम में फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करते हैं. और जो ये जो कांटे जो दिखता है ना, स्पाइंस, सो ये कांटे जो होता है इसे हम मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं. इट इज़ द लीफ एंड इट इज़ द मॉडिफाइड लीव्स. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे अभी आज से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये जो आप लोग दिखता है ना वो स्टेम ऑफ द कैक्टस होता है. इट इज़ नॉट द लीफ. एंड जो स्पाइंस होता है, जो कांटे जो होता है, इट इज़ द मॉडिफाइड लीफ of this cactus plant. So according to this activity we can say that desert plant lose a very little water through the transpiration. Transpiration process में बहुत ही कम पानी उन लोग lose करते हैं. Okay, so that's why if we talk about this activity of tying the polythene bag to this cactus leaf, what happened? It will only a little bit of droplets we can observe. So it depicts that desert plant lose very little water through transpiration and the leaves in the desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. नहीं तो अब बस वो स्टेम जैसे दिखता है. कुछ लीफ में क्या होगा, कांटे जैसे दिखेगा. इफ़ द लीफ इज एब्सेंट होता है, अगर लीफ ही नहीं रहता है, वो कांटे जे नहीं होता है, नहीं तो छोटे छोटे लीफ ही जैसे दिखेंगे, नहीं तो कांटे जैसे दिखेंगे. सो दीज आर ऑल द लीव्स ऑफ दिस cactus plant and this helps in reducing loss of water from the leaf through transpiration. तो cactus plant का transpiration वो पानी ड्रॉपलेट्स कम क्यों होता है? बिकॉज वी सेड दैट द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. सो दैट्स वाई दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ थ्रू transpiration. Now it's clear? Okay. And not only like this, one more important thing about their stem is that the stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of cacti. मतलब वो जो it is having the stem of this cacti, the cactus plant is having a thick waxy layer है, so which helps to retain water in the tissues of cacti. And इनका root के बारे में बोलेगा तो कैसे they are absorbing the water
The desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो पानी तो हमने बोला वहाँ पे ड्राई लैंड होता है, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है. तो पानी कैसे उन लोग लेते हैं? बिकॉज we know that the root of the plant transports water to the other parts of the plant. वो तो आप लोग को पता है. वैसे ही तो डेजर्ट में पानी कौन लेकर आना चाहिए? रूट्स को ही लेकर आना है. और हमें पता है वहाँ पे पानी कम होता है, तो उनका रूट कैसे जाते हैं? द रूट गोज वेरी डीप इनटू द सॉइल for absorbing water. So now it's clear what are all the type of adaptations of living organisms in desert habitat. तो हमने कैमल के बारे में देखा और स्नेक के बारे में, रैट के बारे में, कैक्टस प्लांट्स के बारे में. तो हम लोगों ने डेजर्ट का एडेप्टेशन मेथड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी हैव सीन वेरी थॉरोली. Now we are going to talk about the another terrestrial habitat, that is mountain regions. So let's start. What are the habitats in the mountain regions? These habitats are normally very cold and windy. वो तो हमें पता है. हम लोगों ने वो पहेली और भुजों के बारे में, उन लोग के ट्रिप के बारे में बोलते टाइम हमने बताया था, है ना. वहाँ पे ऋषिकेश गया तो वहाँ पे हिमालयास में बहुत कोल्ड हो रहे थे. एंड वी नो द डेजर्ट एरिया इज़ वेरी हॉट. सो हियर माउंटेन रीजन कैसे होते हैं? द हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी एंड सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स. विंटर के मौसम में स्नोफॉल्स भी होते हैं. ओके, तो ऐसे है. तो इन लोग का अडेप्टेशन कैसे होगा? लेट वी चेक. स्नोफॉल के बारे में बोलेंगे तो मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ पूछूंगी. हाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट द क्रिसमस. क्रिसमस के टाइम हम लोग अपने स्कूल्स में हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. तो व्हाट इज़ द वे, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू इन ड्यूरिंग द क्रिसमस डेज. हम लोग तो क्रिसमस ट्रीज़ को सजाते हैं, स्नोमैन को बनाते हैं, इज़न्ट इट. सो क्रिसमस ट्री हम लोग कैसे शेप, वो क्रिसमस ट्री कैसे दिखते हैं? यस, आप लोग सही सोच रहे हैं. क्रिसमस ट्री एक कॉर्न शेप में दिखते हैं, है ना. क्रिसमस ट्री तो कॉर्न शेप में होते हैं. तो हम लोग क्रिसमस डेज में हम क्रिसमस ट्री को ही डेकोरेट करते हैं ना. हम दूसरे हमारे आम के ट्री पे ऐसे कुछ हम नहीं करते. हम लोग क्रिसमस ट्री लेते हैं और क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री को सजाते हैं. तो उसका मतलब जो स्नोज, हम लोग स्नो नहीं होता है तो हम लोग कॉटन से स्नो जैसे डेकोरेट करते हैं. आप लोग बहुत इंटरेस्टिंगली आप लोग उन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं. तो आप लोग वो ऐसे क्यों यूज़ करें? आप लोग कभी भी सोचा है? बिकॉज वी नो दैट अगर कॉर्न शेप में होता है, because we know that snow means it is like a water only, है ना. हम लोग what we notice in this, if you are living in Kerala or any normal moderate climate area, you have observed that the roof of the house, it will be flat. Yes, the roof of the, generally if you are talking about the pakka makan, so it will be, the roof will be flat actually. So because we don't have that much of heavy rain like that. But if you have seen any movies that is showing the Kashmiri state or Himachal like that, so you can observe that there the houses are made in a cone shape. Why their house roofing, that roofs are in cone shape? Because you know that they are facing a regular snowfalls are happening in that habitat. So वहाँ पे जब रेगुलर स्नोफॉल्स होता है तो रूफ में अगर हम ऐसे वो ब्लॉक करके रहेगा तो घर खराब हो सकता है ना. देयर इज अ लीकेज विल हैपन. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट लीकेज, अगर रूफ कॉर्न शेप में होगा तो द स्नो विल बी स्लिप डाउन. वो तो नीचे स्लाइड करके नीचे आ जाएंगे, वो वहाँ पे रुकेंगे नहीं. सो वैसे ही ये जो ट्रीज वहाँ के जो होता है वो कॉर्न शेप में इसलिए होता है सो दैट द स्नोज कैन बी स्लाइड डाउन. Okay, so this is, see how interesting the way the plants adapted, isn't it? उन लोग अपना शेप कैसे अडाप्ट किया है यहाँ पे सर्वाइव करने के, द माउंटेन हैबिट्स में सर्वाइव करने के लिए यहाँ का ट्रीज का वो जो शेप देखो, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो लेट्स रीड द टेक्स्ट.
If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. The such trees means that cone-shaped trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other region? These trees are normally cone-shaped and have sloppy branches. The leaves of some of these trees are needle-like. They help the rainwater and snow to slide off easily. So यही हम लोग बोल रहे थे. There could be trees with shapes very different from these that also prevent on mountains. They may have different kinds of adaptations to survive on that mountains. अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, यू नो अबाउट द स्नो लेपर्ड, तो दिस इज़ द स्नो लेपर्ड, दिस इज़ द याक. तो आप एंड पोला बेयर्स आर देयर. सो आप लोगों को पता है, यहाँ पे ये पिक्चर में देखो, इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द स्नो लेपर्ड इज़ हैविंग अ लॉट्स ऑफ थिक फर, है ना. उनका जो फर बहुत, और वी कैन से इट एज अ फ्लीज, इट इज़ हैविंग अ वेरी थिक फ्लीट एंड द फ्लीज is almost covered to their toes, legs, everywhere. See, the here is also they are having a very thick fur. Why they are having the thick fur on their legs, on their toes also? Because we know that when they are walking on a snow, it is cold, of course. So to protect their legs or their feet from the cold, they are having the thick fur अप टू देयर लेग्स. उन लोगों को जो स्नो में वॉक करते टाइम उनके पैर ठंड से बचने के लिए दे आर हैविंग, उन लोग को थिक फर उनके टोज तक रहते हैं. सो दिस इज हाउ दिस leopard, snow leopard adapted to survive in this mountain region. Okay. Animals live in the mountain regions are also adapted to the conditions there. They have thick skin or fur, or we can say that fleece, to protect them from cold. The examples of the animals are yak, which is having a long hair to keep them warm. Snow leopard have thick fur on its body. And the next animal that is popular in mountain region is about the mountain goats. जो mountain goats के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो इनका जो heels होता है, the mountain goats is having the, और आप लोगों को ये भी पता है कि there is a mountain is there. So sometimes they want to climb over the mountain. So they are having a very strong hooves are there. What is mean by hooves? हूफ्स मतलब क्या होता है, उन लोगों का जो पैर का वो जो होता है ना, वो जो हम हील्स जैसे बोलते हैं उसे हम हूफ्स बोलते हैं. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैम को नहीं पता है. ओके, सो दैट इज देयर हूफ्स आर वेरी स्ट्रांग बिकॉज दे वांट टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट grassland. Okay, so now we are going to talk about the animals or the living organisms survive in the grassland. So this is the picture of the grassland, and here they are showing in this picture we are having two animals, one is lion and another one is deer. Okay, so lion and deer here it is showing here. So let's see how they are going to survive, or what are all the adaptation techniques they are having to survive in this grassland habitat. Okay, so it is very interesting. So before that, let me talk about two terms. One is what is called prey and what is called predators. A predator is an organism that eats another organism. एक जानवर, मतलब एक जानवर अगर दूसरे जानवर को खा रहे हैं, तो जानवर ही नहीं, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ इट इज ईटिंग अनदर एनिमल, सो हम उसे बोलते हैं प्रेडेटर्स. और जो हंड करने वाला, दैट वी कॉल इट एज अ प्रेडेटर्स. तो ऐसे है तो व्हाट इज कॉल्ड प्रे. देन व्हाट इज प्रे? प्रे मीन्स द प्रे इज द ऑर्गेनिज्म विच द प्रेडेटर्स ईट्स. जो प्रेडेटर्स जो खाते हैं उसे हम, वी कैन से दैट इफ लायन इज द प्रेडेटर देन जीब्रा इज द प्रे. इफ बेयर इज अ प्रेडेटर देन फिश इज इट्स प्रे. And fox is a predator, then rabbit is its prey.
Let's talk about the eyes of these animals that live in grassland. जो grassland में रहने वाले जानवरों का आँखों के बारे में बात करेंगे. So you have observed that they are having the eyes. There are some animals who all are having फॉरवर्ड फेसिंग आइज, मतलब फेस के एकदम फॉरवर्ड सामने रहता है, ऐसे हमने आइज देखा है. एंड वन मोर टाइप ऑफ आइज वी हैव सीन दैट इट इज़ द आइज आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड. उनके जो हेड के साइड में लोकेट करते हैं. द एग्जाम्पल हम इधर ही देख लीजिए. द लॉयन जो होता है, दे आर द फॉरवर्ड हेडेड आइज, दे आर हैविंग फॉरवर्ड फेसिंग आइज. ओके, उनका जो आइज जो होता है एकदम सामने होता है. एंड द डेयर का जो होता है दैट इज़ द साइड, उनके फेस के साइड में लोकेट करते हैं. So you have seen that. Now let's talk about the speciality of these two types of eyes. ये जो दो आँखों का खासियत क्या है, और इस आँख से देख के हमें पता चलता है who is the predator and who is the prey. So ये लॉयन जो होता है हमें पता है ये तो प्रेडेटर है, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. एंड इन लोगों को क्या होता है, दिस इज द प्रे, द डेयर इज द प्रे. तो मैं इधर इसको प्रेडेटर लिखती हूँ, प्रेडेटर, एंड दिस इज द प्रे. ओके, सो नाउ वी आर टॉक्ड अबाउट द आइज. इनके आइज को आप लोग बाइनोकुलर वर्ड सुना होगा ना. यू हैव लर्नड अबाउट द बाइनोकुलर. वाई वी आर यूजिंग द बाइनोकुलर? द बाइनोकुलर, वी ऑलवेज होल्ड दैट बाइनोकुलर इन फ्रंट ऑफ योर फेस एंड इट हेल्प्स अस टू गिव अ लॉन्ग विजन. दूर की चीज़ें एकदम पास जैसे देखने के लिए हम लोग बाइनोकुलर, देयर आइज इज हैविंग अ बाइनोकुलर विजन which allows an animal to see and judge depth. तो क्या है, they allow them to see their prey. उन लोगों को प्रे के, उन लोगों का जो प्रे रहता है ना, दूर तक उन लोगों का प्रे को उन लोगों को देखने के लिए they are having that binocular vision. So forward facing eyes वाले हर जानवर को binocular vision होता है and they are comes in the category of predators. Okay. Then what about the animals with eyes that are located on the side of its head? डेयर का जो होता है, they are having their eyes located on the side of their face. Do not need binocular vision to see ahead of them. Why? Because they aren't actively seeking prey. उन लोग क्या करते हैं, उन लोग प्रे को नहीं ढूंढते. जो प्रेडेटर्स होते हैं उन लोग ऑलवेज प्रेज को ढूंढते हैं. प्रे, दे नीड अ प्रे, दे लुक फॉरवर्ड फॉर देयर प्रे. सो ऐसे वाले एनिमल्स को फॉरवर्ड फेसिंग आइज होते हैं. लेकिन जो साइड आइज जो होने वाले जानवर क्या होते हैं, उन लोग प्रेज को नहीं ढूंढते. उन लोग प्रेडेटर्स से बचने के लिए, दैट मीन्स दे आर चेकिंग वेदर द प्रेडेटर्स आर कमिंग, मतलब उन लोगों को कोई खाने के लिए आ रहा है कि नहीं, वो हेल्प करने के लिए, उनको प्रेडेटर्स से बचने के लिए इन लोगों का जो आइज हेल्प करते हैं. सो वी कैन से दैट द प्रेडेटर्स आर हैविंग eyes on the side of their head. And why they are having the eyes on their side of the head? To survive their environment from predators. And it allows them to see both their predators to the sides and the predators behind them. तो इसीलिए they are having eyes on the side of their head.